फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सीएचएस सेल्फ सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले पावर, ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बहुत सारे क्यूरी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में इसके बारे में आते रहते हैं, तो आई थॉट कि एक वीडियो बना दिया जाए जिससे सबकी हेल्प हो पाए। तो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं। एंड स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फ्रेंड्स, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। आपका लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बाइलॉ नंबर 138 में क्या बताया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा वर्क ऑफ स्कोप बताया गया है और उसका करस्पॉन्डिंग जो बाइलॉ नंबर है वो बताया गया है। तो इस टेबल में बाइलॉ नंबर मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। बाइलॉ नंबर आप खुद जा करके चेक कर लीजिए डिटेल में उसके बारे में क्या लिखा गया है। यहाँ पे वर्क ऑफ स्कोप जो आइटम्स लिखे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। टू कंसीडर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड रेजिंग ऑफ फंड, टू कंसीडर एंड रिकमेंड टू द मीटिंग ऑफ जनरल बॉडी द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, टू कंसीडर ऑल मैटर रिलेटिंग टू द क्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिपेयर फंड्स, रिजर्व फंड एंड sinking fund, to consider and decide the resignation received from member, associate member, and nominal member, to ensure that nomination and revocation thereof are recorded in the minutes of committee, to take action on the report of the secretary on the inspection of the flat. तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि ये सारे स्कोप हमारे मैनेजिंग कमेटी की है, और इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में कि मैनेजिंग कमेटी का मंथली मीटिंग क्यों अनिवार्य है। ये सारे वर्क स्कोप है जो उसमें डिस्कस और पास किए जाते हैं। तो नेक्स्ट है टू टेक एक्शन ऑन केस ऑफ सजेशन ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग एसोसिएट एंड नॉमिनल मेंबरशिप, टू कंसीडर एंड डिसाइड एप्लीकेशन फॉर वेरियस पर्पज रिसीव्ड बाय सोसाइटी, consider and decide case of refund of share and interest in the capital property of society where the shares and interest in the capital property are acquired by the society, to fix the rate of insurance premium in respect of commercial use of flat, to fix in respect of every flat the society charges on the basis of proportion laid down under the bylaw number 67A, to review the position of recovery of charges due to the society and the member and initiate action against the defaulted charge of the society, to verify compliance of the provision relating to charging the interest in defaulted charge of the society, to authorize a member of the committee to attest a deed of conveyance, their certificate and other document to which the seal of society is affixed, to issue letter of allotment of flat to those flats have purchased flat from the promoter, to make available papers of the society for perusal if asked by any member, to ensure holding of every annual meeting of general body are kept on agenda of the meeting, to ensure that all matters required to be considered at the annual meeting of the general body are kept on the agenda of the meeting, to call a special general body meeting whenever required, to arrange a election of new committee prior to the expiry the period of existing committee, to ensure that after election new committee is duly constituted, to effect office bearer of the society, to ensure the meeting of the committee is held once in a month, to fill in vacancy of the committee, to consider resignation of the member of the committee, to consider resignation of an office bearer of the society, to obtain security from paid employee of the society, to approve the audit rectification report of the statutory and the internal audit, to forward them to the authority concerned, to execute deed of conveyance of the land and building, building, thereon,
to take steps to maintain the property of society in good condition and carry out repairs to it and renewal thereof, to ensure the property of society, to suggest the general body meeting of the rates of penalty for breach of bylaw and to issue a so cause notice, to regulate operation of the lift of the society, to suggest to the meeting of general body the games to be allowed to be played in compound of the society, to consider and decide any other matters provided under the MCS Act 1960, the MCS Rule 1961 and the bylaw of the society, but not expressly indicated herein above, to regulate parking in the society, to ensure that society is affiliated to housing federation and its subscription is regularly paid, to take the decision on the complaint application in the managing committee meeting and inform the concerned member of its decision accordingly, to enter into contract with the architect of the society, to scrutinize the tender received for construction of the work and to submit the same along with committee report to the meeting of the general body and enter into contract with the contractor. तो फ्रेंड्स इतनी सारी वर्क स्कोप है और आई थिंक इसने सब कुछ कवर कर लिया गया है। तो आई थिंक आपको भी क्लियर हो गया होगी कि मैनेजिंग कमेटी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बट बहुत सारी सोसाइटीज में और मेंबर्स में अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मैनेजिंग कमेटी को है क्या। तो यहाँ पे क्लियर बताना चाहता हूँ कि जो जनरल बॉडी ने अथोराइज किया है मैनेजिंग कमेटी को काम करने के लिए, वही काम मैनेजिंग कमेटी कर सकती है, उसके बियॉन्ड काम नहीं कर सकती। इन सब का ऑथराइजेशन जनरल बॉडी में दिया जाता है। अभी सपोज करिए कोई खर्चा ही आ गया 2 लाख का और अगर जनरल बॉडी ने अप्रूवल नहीं दिया है तो मैनेजिंग कमेटी कर नहीं सकती बिना जनरल बॉडी कॉल किए। जनरल बॉडी लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, देन मैनेजिंग कमेटी टेक डिसीजन टू गिव द टेंडर, पास द टेंडर, स्क्रूटनाइज द वेंडर्स, सब वो उनके रोल्स में आता है। तो ये सारे रूल एंड रेगुलेशन है, ये सारे वर्क स्कोप जनरल बॉडी मीटिंग इनको अथोराइज करता है, देन मैनेजिंग कमेटी विल परफॉर्म देयर फंक्शंस। तो आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। अगर कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जब भी हमें टाइम मिलेगा तो रिप्लाई कर देंगे। और फ्रेंड्स नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल ना किया करिए, आपको अगर कुछ भी क्वेरी है तो हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी डालिए, जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम रिप्लाई वहाँ पे करते हैं या तो ईमेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप अपने सोसाइटीज में, फ्रेंड्स में मैनेजिंग कमेटी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपकी सोसाइटीज में बाय लॉ रिलेटेड अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतनी ही अच्छे से आपकी सोसाइटी रन होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।